بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی تو میں نے چونک کر کتاب سے نظریں اٹھا کر دروازے کی سمت دیکھا۔ اس وقت میں صرف مطالعہ کیا کرتی تھی اور اس بات سے سبھی آگاہ تھے، لہٰذا کوئی بھی اس وقت میری مصروفیت میں دخل اندازی نہیں کیا کرتا تھا۔ پھر یہ بے وقت کی دستک مجھے اچھی خاصی کوفت ہوئی تھی، تاہم میں نے نرم آواز میں کہا، آ جائیے۔ میری کتاب کے درمیان ہاتھ رکھ کر چند لمحے تک منتظر نگاہیں دروازے کو دیکھتی رہی، مگر کسی نے بھی اندر نہیں جھانکا۔ کوئی ملازمہ ہوگی، شاید میرے دیر سے جواب دینے پر واپس چلی گئی۔ یہ سوچ کر میں دوبارہ کتاب میں غرق ہو گئی۔ لمحہ بلمحہ آگے بڑھتی کہانی بڑی دلچسپ موڑ پر پہنچی تو دوبارہ اسی دستک نے مجھے شدید چنچلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ ارے بھائی، کون ہے؟ آ جاؤ اندر۔ چند لمحے تک خاموشی چھائی رہی، پھر دروازہ کھل گیا مگر کوئی بھی اندر نہیں آیا۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ اور اگر کسی نے نہیں آنا تھا اندر تو بھلا دستک دے کر دروازہ کھولنے کی کیا تک تھی؟ عجیب بے وقوف ملازم ہے یہاں کے، میں نے بن نہا کر اٹھتے ہوئے سوچا۔ شدید غصے میں نے باہر نکل کر دیکھا تو راہداری بالکل خالی تھی۔ عجیب بات تھی، دستک کو تو یہ کہہ کر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ شاید یہ میرے تخیل کا کرشمہ ہو، مگر دروازہ کھلنا، کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ دروازہ کھلنے اور میرے اٹھنے کے درمیان کا 1 منٹ کا وقفے سے بھی کچھ کم وقت ہوا ہوگا۔ اتنی دیر میں اس طویل راہداری کو پار کر کے جانا بھی تو ممکن نہیں تھا۔ خیر، میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑا اور دروازہ کھلا ہی چھوڑ کر دوبارہ اندر کی راہ لی۔ کرسی پر بیٹھ کر میں نے دوبارہ کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ چند پل گزرے ہوں گے اس بار تو زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ میں اس دھماکے پر بری طرح سے اچھل پڑی۔ آخر یہ کون تھا جو ایسی حرکتیں کر رہا تھا؟ مجھے شدید تاؤ آ گیا تھا۔ میں نے تیزی سے اٹھ کر باہر جھانکا اور بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ کون ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے؟ سامنے آ جاؤ ورنہ بہت برا حشر کروں گی میں تمہارا۔ جواب میں مجھے عجیب سی ہنسی کی آواز آئی، گویا کوئی مجھے بے وقوف بنا کر ہنس رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں ہنسی کی آواز کے مرکز کو کھوج رہی تھی اور مجھے اس وقت سخت حیرت ہوئی جب میں نے سامنے کی دیوار میں سے یہ آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی اس دیوار پر ایک پرچھائی نظر آنے لگی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پرچھائی کو دیکھنے لگی۔ میرا نام نازنین ہے، میرا تعلق ایک بہت ہی اعلیٰ اور اچھے گھرانے سے ہے۔ ہمارے بزرگ ایک بہت بڑی ریاست کے حکمران تھے جس کا نام شجاع گڑھ تھا۔ اب اگرچہ وہ ریاست تو نہیں رہی، لیکن ہماری جاگیریں اب بھی اتنی ہی ہیں کہ ہم اب بھی نواب ہی کہلاتے ہیں۔ میرے والد نواب شمس الزمان ایک بے حد باوقار و رکھ رکھاؤ والے انسان ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ابھی تک پرانے خیالات کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں عورتوں کو 7 پردوں میں ہی چھپے رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری محل نما حویلی میں مردانہ اور زنانہ حصے بالکل الگ ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حویلی کے زنانہ حصے میں کسی بھی مرد ملازم کو آنے سے سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یا تو عورتیں بطور ملازمہ رکھی جاتی ہیں یا پھر خواجہ سرا رکھے جاتے ہیں۔ اتنے پرانے خیالات کا ہونے کے باوجود بھی عورتوں کی تعلیم اور تربیت میں بہت دلچسپی رکھی جاتی تھی۔ خاص طور پر اپنے اپنے فن میں کامل استادوں کو بلایا جاتا اور بہت زیادہ معاوضے پر رکھا جاتا۔ میں نے بھی ہوش سنبھالنے کے بعد ایسی ہی صورتحال دیکھی، لیکن مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ میں بابا جانی کی بہت لاڈلی تھی۔ مجھے باہر گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہوتا، مگر میری ہر فرمائش پوری ہونے کے باوجود بھی مجھے باہر گھومنے پھرنے کی اجازت بابا جانی نے نہیں دی تھی۔ اسی بات پر میں نے کئی بار بابا جانی کے ساتھ لڑائی بھی کی، مگر ان کا جواب ہمیشہ انکار میں ہوتا۔ کچھ دن تک تو میں خاموش ہو گئی، مگر پھر فارغ بیٹھ کر تنگ ہونے لگی۔ میں نے حویلی کے باورچی خانے میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ حویلی کے ملازمین سارا دن باورچی خانے میں ہوتے۔ میں نے حویلی میں کھانا پکانے والی خالہ رشیدہ کی بیٹی سے دوستی کر لی تھی۔ وہ بھی میری ہم عمر تھی اور اپنی ماں کے ساتھ اکثر ہماری حویلی آیا کرتی تھی۔ اس کا نام ریشمہ تھا۔ میں بہت جلد اس کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ ایک دن ریشمہ حویلی میں آئی تو میں نے ملازمہ کو بھیج کر ریشمہ کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ میں اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ دروازہ کھل گیا اور ریشمہ اندر آتی نظر آئی۔
रेशमा ने कहा, आपने मुझे बुलाया था? मैंने कहा, हाँ मैंने बुलाया था। रेशमा ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे हवेली में बाहर जाना है। हवेली से क्या तुम मुझे ले जाओगी? रेशमा ने मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग चल गया है। मैंने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? रेशमा ने घबरा कर कहा, मैं कैसे लेकर जाऊंगी? नवाब साहब मेरी खाल उधेड़ देंगे। मैंने सरगोशी में कहा, उनको पता ही नहीं चलने देंगे हम। रेशमा ने कहा, मगर मैंने कहा, उसकी बात काट कर जल्दी से कहा, कुछ नहीं होगा, मैं मुंह ढांप लूंगी, कोई पहचानेगा ही नहीं। रेशमा ने कहा, पर बीबी, मुहाफिज आपको आपके लिबास से पहचान जाएंगे। वो हम दोनों को उधर ही खड़ा करके नवाब साहब को इत्तला पहुंचा देंगे। और फिर उससे आगे का तस्वर सिर्फ रेशमा के लिए नहीं, मेरे लिए भी रोंगटे खड़े किए दे रहा था। अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैंने रेशमा को अपने सामने खड़ा करके गौर से देखा और मुस्कुराकर उसको अपनी तरकीब बताने लगी। रेशमा ये सुनकर आंखें फाड़ कर मुझे देखने लगी। अगर फिर भी नवाब साहब को पता चला तो? उसने कपकपाती आवाज़ में पूछा। तो मैंने उससे सख्ती से कहा, किसी को तो पता नहीं चलेगा, मरो मत, बस वैसा ही करना जैसे मैंने कहा है। रेशमा के पास मेरी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। चारों नाचार उसने सर हिला दिया। वो चली गई और मैं बड़ी बेचैनी से अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। दूसरे रोज़ रेशमा आई तो बाकी मुलाजमों से नज़र बचाकर सीधी मेरे कमरे की तरफ आई। उसकी बगल में एक गठरी दबी हुई थी। मैंने बेचैनी से आगे बढ़ते हुए उसे बाजू से पकड़ा और अपने कमरे में ले आई। रेशमा काफ़ी घबराई से नज़र आ रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम ले आई रेशमा? उसने इस बात में सर हिलाते हुए गठरी खोल दी। उसमें वो मेरे कहने के मुताबिक अपने कपड़े और एक बड़ी सी शॉल बांध कर लाई थी। बस यही एक तरीका था जिस पर अमल करके मैं किसी की नज़रों में आए बगैर हवेली से बाहर निकल सकती थी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े तब्दील कर लिए। रेशमा के कपड़े मेरे जिस्म पर मुकम्मल तौर पर फिट आए थे। मैंने ऊपर से उसकी बड़ी सी शॉल लेकर ओढ़ ली और पल्लू से आधा चेहरा ढांप लिया और रेशमा के साथ कमरे से बाहर आ गई। रेशमा ने इधर उधर देखा और जल्दी से मेरा हाथ थामकर हवेली के सहन की तरफ आ गई। मैंने सरगोशी में पूछा, अब कैसे जाएं? रेशमा ने मुझे वहीं रुकने का कहा और गेट से बाहर झांकने लगी। गार्ड जरा दूर टहल रहे थे। वो चंद लम्हे तक तो उनमें से एक एक के साथ यूं ही गपशप करती रही। थोड़ी देर बाद उसने गैर महसूस तौर पर मुझे अपने हाथ से आने का अपने साथ इशारा किया। हम दोनों तेज तेज कदमों से सड़क पार करने लगे। रेशमा मेरा हाथ पकड़े कस्बे की पगडंडी पर चलने लगी। दोपहर तक हम घूमते रहे। मैंने रेशमा का हाथ थामा और कस्बे से बाहर का रुख कर लिया। उधर बरगद के कई साल पुराने दरख्त थे। मैं एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। तेज़ हवा मेरे बाल उड़ाए जा रही थी। उस हवा को महसूस करके मेरे अंग अंग में खुशी की एक लहर दौड़ने लगी थी। हवा के तेज झोंके मेरे रुखसारों को चूमते हुए आगे गुजरते जा रहे थे। सरमाह की धूप बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने बेख्तियार आंखें बंद कर दी। अचानक ही किसी की आवाज़ सुनाई दी, नाज़नीन। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी और रेशमा को देखा। वो पास ही बैठी थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? रेशमा ने ताज्जुब से मुझे देखते हुए पूछा, क्या बीबी जी? मैंने उलझे हुए अंदाज में पूछा, तुमने अभी मेरा नाम लिया था? रेशमा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बीबी जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने पुरसोच नज़रों से उसे देखते हुए कहा, अच्छा, फिर शायद मेरे ही कान बजे होंगे। रेशमा मुस्कुरा दी। मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली। उसी लम्हे मेरी नाक से तेज़ खुशबू टकराई। वो मसूर कर देने वाली खुशबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। मैंने चंद लम्हे तक उस खुशबू को सांसों में उतारने के बाद आंखें खोल दी और उस खुशबू के मंबे को तलाश करने लगी। रेशमा ने मुझे इस तरह इधर उधर देखते हुए पाया तो पूछने लगी, क्या बात है नाज़नीन बीबी? मैंने कहा, रेशमा, इतनी प्यारी खुशबू कहाँ से आ रही थी? रेशमा हैरत से मुझे देखने लगी। कैसी खुशबू? मैंने ताज्जुब से उसे देखते हुए पूछा, तुम्हें ये खुशबू महसूस नहीं हो रही थी? रेशमा ने उलझन से मुझे देखते हुए जवाब दिया, नहीं तो बीबी जी, मैंने तो कोई खुशबू महसूस नहीं की। मैंने हैरत से उसकी बात सुनी। ये कैसे हो सकता था? रेशमा ये बात सुनकर कुछ डरी सी नजर आने लगी। उसने कहा, चले बीबी, ये दरख्त गैबी मखलूक के ठिकाने होते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है।
मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। तभी रेशमा मुझसे इसरार करते हुए कहने लगी, नाज़नीन आप चलें, अब दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है। नवाब साहब आने ही वाले होंगे, अगर उन्होंने आपको खाने की टेबल पर नहीं देखा तो। मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, इतने दिन बाद तो आई हूँ, अभी तो वापस चलने का तुम कह रही हो। रेशमा ने कहा, हम फिर कभी आएंगे, अभी आप चलें। रेशमा ने ऐसी जल्दी मचाई कि मुझे मजबूरन वापस चलना पड़ा और वापस उसी तरह से अंदर आ गए। गार्ड ने मुझे मेरे आम लिबास की वजह से कोई मुलाजमा ही समझी, इसलिए उन्हें कोई शक नहीं था। हवेली में दाखिल होकर मैंने शॉल उतारी और अपने कमरे में आ गई। कपड़े तब्दील करने के बाद खाना खाने के लिए बाहर आ गई। दादी जान ने मुझे आते देखा तो कहा, आ गई मेरी शहजादी बेटी। मैं मुस्कुरा दी। दादी जान ने कहा, आज मैंने ख़ास नाज़नीन की पसंद की बिरयानी बनवाई है। बिरयानी का सुनकर मैं खुश हो गई। मैंने उठकर दादी जान के गले में बाहें डाल दी और कहा, एक आप ही हैं दादी जान जिनको मेरा ख्याल है, कितनी स्वीट है मेरी दादी जान। ये कहते हुए मैंने कंख्यू से बाबा जानी को देखा। बाबा जानी ने एक नाराज़ सी नज़र मुझ पर डाली और कहा, ये तुम एक मामूली बिरयानी पर इतनी खुशी क्यों जाहिर कर रही हो, जैसे पहले कभी बिरयानी नहीं खाई। कहीं से नहीं लगता कि तुम एक नवाब की अकलौती बेटी हो। मैंने खफकी से बाबा जानी को देखा। दादी जान भी नाराज़ी से बाबा जानी को देख रही थी। मुझे खफा देखकर दादी जान ने कहा, बच्ची ही तो है, अगर खुशी का इजहार कर लिया तो क्या हो गया। बाबा जानी उठकर मेरे पास आए, मगर मैंने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मुझे ऐसे करते देखकर बाबा जानी ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी जान आपकी बात दुरुस्त है, मगर नाज़नीन ये ख्याल नहीं रखती कि इसकी हैसियत क्या है। मैंने खफा लहजे में कहा, बाबा जानी मैं आपकी सोच से मुख्तलिफ सोच रखती हूँ। मैं नवाबजादी हूँ मगर आम इंसानों जैसी हूँ। बाबा जानी ने मुझे खुशमगी नज़रों से घूरा और चुपचाप खाना खाने लगे। मैं एक सर्द आह भर कर रह गई। बाबा जानी ने कभी मेरी इस बात पर मुत्तफिक नहीं होना था। मैंने जी भर कर खाने से इंसाफ किया और फिर अपने कमरे में लंबी तान कर सो गई। थकन से मेरा जोर जोर दुख रहा था। सोई तो आँख शाम की अजान की आवाज़ पर खुली। आज के दिन की जो चंद एक घड़ियाँ बाहर गुजारी थी, उससे जो सरखुशी का एहसास हुआ था वो अब तक बाकी था। मैं बेचैनी से कल का इंतज़ार करने लगी थी। अगले दिन कल की तरह ही रेशमा जाने से पहले मेरे कमरे में आ गई। चूँकि दादी जान से बात करके मैंने रेशमा को अपनी ख़ास मुलाजमा के तौर पर तयन कर दिया था, इसलिए उसे बाकी कामों से छुट्टी मिल जाया करती थी। रेशमा के कल वाले कपड़े मैंने फिर से पहन लिए और हम दोनों बाहर निकल आए। आज घर पर रेशमा के साथ एक लड़का भी बैठा हुआ था। लड़के को देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, ये कौन है रेशमा, और यहाँ क्या कर रहा है? रेशमा ने घबराते हुए कहा, जी ये मेरा खालाजादा है। आज़र तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज़र यकटक मुझे देख रहा था। मैं मुसलसल उसके तकने से कंफ्यूज हो गई थी। रेशमा ने आज़र को घूर कर देखा और कहा, आज़र। रेशमा के बुलाने पर आज़र चौंक गया। आज़र ने कहा, वो मैं चंद दिन के लिए शहर से खाला जी के पास रहने आया हूँ। रेशमा परेशानी से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, इससे समझा दो रेशमा, हमारे बारे में किसी को ना बताए, वरना हम इसका जो हश्र करेंगे। मेरी बात सुनकर आज़र चौंक गया। उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा और फिर रेशमा को देखने लगा। रेशमा ने जल्दी से कहा, ये नवाबजादी नाज़नीन है, नवाब साहब की अकलौती बेटी और हमारी मालकिन। मेरे बारे में ये सुनकर आज़र को चुप लग गई थी। उसने बेख्तियार अपनी नज़रें झुका दी। मैं दिलचस्पी से उसे देखने लगी। वो गंदमी रंगत अच्छे नाक नक्श वाला नौजवान था। मैंने उससे कहा, क्या करते हो तुम शहर में? आज़र ने झिझक कर जवाब दिया, जी एक वर्कशॉप है, अपनी उसको चलाता हूँ। मैंने कहा, अच्छा। मैं बाहर जाने लगी। पीछे रेशमा ने आज़र को घर का ख्याल रखने का कहा और बौखलाई हुई मेरे पीछे भागी। उसने हाँफते हुए कहा, नाज़नीन रुकें तो सही। मैंने तेज़ तेज़ चलते हुए गली के नुक्कड़ पर मौजूद बाबा जानी की गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो बाबा जानी की गाड़ी यहाँ से गुजरेगी, यहाँ पर हम उस वक्त चल रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो पिछले गेट पर भी पाबंदी लग जाएगी। बाबा जानी की गाड़ी देखकर रेशमा का चेहरा फक हो गया। वो सरता पाँव खौफ के मारे कांपने लगी। उस बेचारी से डर की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती घसीटना शुरू कर दिया। वो जैसे तैसे मेरे साथ मरे मरे कदमों से चलती रही।
गेट पार करके हम हवेली में दाखिल हो ही गए। रेशमा मेरे कमरे में पहुंचकर कालीन पर ढेर हो गई थी। मैंने उसे पानी पिलाया तो कुछ देर बाद उसके उसान कुछ बहाल हुए और उसने बच जाने पर सुकून की सांस लेते हुए कहा, नाज़नीन बीबी, मुझे लगा कि नवाब साहब ने हमें देख लिया है। मेरी तो जी जान ही निकल गई थी। मैं हंस पड़ी। मैंने हंसते हुए कहा, तुम भी ना कितनी डरपोक हो रेशमा। पापा जानी भला हमें कैसे पहचानते? मैंने तो चेहरा ही ढांपा हुआ था। मेरी बात सुनकर रेशमा कुछ मुतमईन हो गई थी। तभी मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजे में खड़े होकर मुलाजमा से पूछा, क्या हुआ? मुलाजमा ने कहा, वो बीबी जी, नवाब साहब ने कहा था कि देख कर आओ कि बीबी नाज़नीन अपने कमरे में है या नहीं। मैं मुलाजमा की बात सुनकर बेचैन हो गई और रेशमा का चेहरा भी सर्द नजर आने लगा। मैंने कहा, कोई काम था बाबा जान को मुझसे? मुलाजमा ने कहा, नहीं जी बीबी जी, नवाब साहब ने कहा कि बस वैसे ही देखकर उनको बताऊं। मैंने मुलाजमा को जाने का इशारा किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रेशमा ने जर्द चेहरे से मुझे देखकर खौफजदा लहजे में कहा, मैंने कहा था ना बीबी जी, नवाब साहब को शायद शक हो गया, इसीलिए मुलाजमा को उन्होंने भेजा है। मैं कमरे में टहलने लगी। मैंने कहा, रेशमा, बाबा जान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि उनको मालूम भी हो गया, तब भी वो कुछ नहीं कहेंगे। रेशमा ने अजीब से नज़रों से मुझे देखा। मैं उसकी नज़रों में छुपा महफूम समझ गई थी। मैंने उसे तसल्लीआमेज़ अंदाज में कहा, तुम इसलिए परेशान हो रही हो ना कि मेरी वजह से तुम्हारी शामत ना आ जाए। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रेशमा के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे से निकली और दादी जान की तरफ निकली जा। रास्ते में बाबा जानी से टकरा हुआ तो उन्होंने गौर से मुझे देखकर कहा, कहाँ जा रही हो नाज़नीन? मैंने कहा, कहीं नहीं बाबा जानी, दादी जान के पास जा रही हूँ। वो चुपचाप खड़े मुझे खोजती नज़रों से देखते रहे और मैं खामोशी से खड़ी उन्हें देखती रही। चंद लम्हे बाद वो आगे बढ़ते हुए बोले, ठीक है जाओ, मेरी जान में जान आई तो मैं आगे बढ़ी। रेशमा की ये बात अब मुझे सही लग रही थी कि बाबा जानी को शायद शक हो गया है। दादी जान के पास वापस जाकर मैं उन्हें एक नावल पढ़कर सुनाने लगी। नावल पढ़ते पढ़ते अचानक मेरी नज़रों में आजिर का चेहरा घूम गया। वो भी तो ऐसा ही था, किसी नावल के हीरो जैसा, खूबसूरत, शरीफ, अच्छे अखलाक वाला। मैं नावल पढ़ते पढ़ते गुमसुम हो गई। दादी जान ने मेरा कंधा जोर से हिलाया तो मैं हड़बड़ा कर उन्हें देखने लगी। कहाँ गुम हो गई हो नाज़नीन? क्या सोच रही हो? मैंने घबरा कर कहा, कुछ नहीं दादी जान, बस वैसे ही इस कहानी के बारे में सोच रही थी। दादी जान मुस्कुरा दी। मैंने थोड़ी देर बाद उनसे इजाज़त ली और कमरे में आ गई। कुछ देर तक बेड से टेक लगाए बैठी रही, फिर बेचैनी से कमरे में इधर से उधर टहलने लगी। पता नहीं क्यों बार बार आज़िर का चेहरा सामने आ जाता। उसी उधेड़पन में रात हो गई और जब मैंने नींद की वादी में उतरी तो भी मेरे ख्यालात में आज़िर का ही तस्वुर बसा हुआ था। अगले दिन मैं फिर से घर से निकलने के लिए कोई बहाना सोचने लगी। मैंने रेशमा को बुलाया और बातों ही बातों में उससे सरसरी तौर पर आज़िर के बारे में पूछने लगी। वो मेरे पूछने पर कुछ चौंकी तो थी, मगर उसने कहा कुछ नहीं। उस दिन मैं घर से नहीं निकल सकी क्योंकि बाबा जानी सारा दिन घर पर ही मौजूद थे और उनके होते हुए बाहर जाने में ख़तरा ही ख़तरा था। इसलिए वो दिन मैंने मुताला करते और दादी जान के पास बैठकर गुजारा था। दूसरे दिन बाबा जानी कहीं गए हुए थे, इसीलिए मैंने रेशमा को अपने साथ लिया और बाहर निकल खड़ी हुई। उस वक्त हम रेशमा के घर पर ही मौजूद थे। रेशमा ने कुछ हिचकिचाते हुए मुझे चाय पीने की पेशकश की तो मैंने खुशी खुशी उसे मंजूर कर लिया। उसी वक्त आज़िर उस कमरे में आ गया। रेशमा उसे मायने खेज नज़रों से देखती हुई बाहर चली गई। मैंने उससे कहा, आओ आज़िर बैठो। वो मुस्कुराते हुए बोला, नहीं जी, मैं नवाबजादी साहिबा आपके पास कैसे बैठ सकता हूँ। मैंने उठते हुए कहा, तब तो फिर नवाबजादी साहिबा को भी खड़ा होना पड़ेगा। आज़िर मुझे उठते देखकर जल्दी से बैठ गया। हम दोनों बातें करते रहे। रेशमा चाय लेकर आई। हम सब ने मिलकर चाय पी तो रेशमा उठ खड़ी हुई। बीबी जी अब चलें? उसके कहने पर मैं मजबूरन खड़ी हो गई। उसके बाद मैं अक्सर रेशमा के घर जाने लगी। मुझे आज़िर अच्छा लगने लगा था। उससे मिलकर मुझे खुशी महसूस होती। कभी कभी आज़िर की आंखें मुझे बहुत सुर्ख नजर आती। उस दिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि आज़िर, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? इतनी लाल क्यों हो रही हैं? वो हंस कर कहता, तुम्हारे हिज्जर में जाग कर सुर्ख हुई है। उसके साथ ही उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचा तो मैंने घबरा कर उसे देखा। उससे एक खुशबू आ रही थी।
जैसे कि मैंने उस दिन महसूस की थी जब मैं और रेशमा बरगद के दरख्तों के पास बैठे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। आज़र बहुत मोहब्बत से मुझे देख रहा था, फिर अचानक ही वो मेरे चेहरे पर झुका और उसने अपने जलते हुए होंठों पर हाथ रखा। ये पहली बार नहीं था, वो अक्सर ही ऐसी हरकत करता, मगर मैंने उसे एक बार भी हद से आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं सख्ता ज़दा सी खड़ी रही। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर हम चौंक कर पीछे हटे। मैंने पलट कर देखा तो मुझे अपनी जान निकलती महसूस हुई। दरवाजे में बाबा जानी खड़े शर्बार नज़रों से हमें देख रहे थे। मैंने बौखला कर आज़र की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे, जैसे वो कुछ समझ न पा रहा हो कि ये क्या हो रहा है। बाबा जानी गज़बनाक नज़रों से हमें देखते हुए अंदर आए। आज़र ने घबराती आवाज़ में कहा, सलाम नवाब साहब। बाबा जानी ने जवाब में एक जोरदार थप्पड़ आज़र के चेहरे पर दे मारा। वो दान पान सा था, इसलिए थप्पड़ खाते ही उलटकर पीछे जा गिरा। मैं कांपते हुए उसे देख रही थी। आज़र खौफज़दा होते हुए उठकर बोला, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? नवाब साहब, मैंने क्या किया है? मैंने बौखला कर उसे देखा। क्या इसका दिमाग तो नहीं चल गया जो बाबा जानी से ये पूछ रहा है? कुछ देर पहले जो हुआ था उसके बाद तो उसूलन बाबा जानी को हम दोनों को ही गोली मार देनी चाहिए थी, और वही हुआ जिसका डर था। बाबा जानी के हाथ में पिस्तौल था जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था। उन्होंने आज़र को पिस्तौल का दस्ता रसीद करते हुए कहा, क्या किया है? हमारी इज्जत पर हाथ डालते हुए भी पूछता है कि मैंने क्या किया है? तुम नीच इंसान, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारी बेटी को हाथ लगाने की? वो उसे मारने लगे तो वो बिलबिलाते हुए बोला, नवाब साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कब हाथ लगाया आपकी बेटी को? मुझे तो पता भी नहीं कि मैं इस कमरे में कैसे आया। मैं बेकसूर हूँ जनाब, मैं बेकसूर हूँ। मैंने हैरत से आज़र को देखा। वो ये क्या कह रहा था? वो तो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन बाबा जानी पर उसके झूठ का कोई असर नहीं हुआ। वो जो देख चुके थे बस उनके लिए वो काफ़ी था। उन्होंने पिस्तौल सीधा किया और आज़र के सर में गोली दाग दी। मैं इस सदमे से बेहोश हो गई। जब दोबारा होश आया तो मैंने अपने कमरे में खुद को पाया। मैंने इर्द गिर्द देखा। मेरे बेड से ज़रा फासले पर एक मुलाजमा खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, रेशमा, रेशमा कहाँ है? उसे बुलाओ। मुलाजमा ने सर उठाकर दुखी नज़रों से मुझे देखा और दोबारा नजरें झुका ली। मैंने बेचैन होकर चिल्लाते हुए पूछा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने पूछा, कहाँ है रेशमा, बताओ मुझे। मुलाजमा आंसू बहाते हुए मेरे करीब आई। मेरा दिल लरजने लगा। वो रो क्यों रही थी? वो रोते हुए बोली, बीबी जी, रेशमा और उसके सारे घराने को नामालूम लोगों ने मार दिया है। मैं सख्ता ज़दा से उसे देखती रह गई। ये क्या कह रही थी वो? ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने ये सुनकर ज़ोर से चीखें मारते हुए कहा और मुझे मुलाजमा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं बिस्तर से उतरकर भागते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। मुझे भागता हुआ देखकर मुलाजमा ने मुझे पकड़ लिया। मेरी चीखें सुनकर हवेली में मौजूद दूसरे मुलाजमीन भी भागते हुए आए। सब मुलाजमों ने मुझे पकड़ लिया। मैं उनकी गिरफ्त में तड़पती हुई जाने कब होश व हवास से बेगाना हुई मुझे मालूम नहीं। मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। एक सर्द लहर सारे जिस्म से गुजरती महसूस हुई। सर्दी की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कमरे में नज़र दौड़ाई तो मुझे खिड़की के पास खड़ा कोई नज़र आया। सारे कमरे में अंधेरा था। अंधेरे में कौन खिड़की के पास खड़ा था? मैंने सोचा शायद कोई मुलाजमा होगी। मैंने आवाज़ देकर कहा, कौन है वहाँ? मेरी आवाज़ सुनकर साय ने हरकत की और चंद कदम चलने के बाद अंधेरे में न जाने कहाँ गायब हो गया। तभी दरवाजे पर बाबा जान की आवाज़ सुनाई दी। वो गुस्से में बोल रहे थे, मैं इसे जान से मार दूंगा। मेरी मोहब्बत का इसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मैंने दादी जान की आवाज़ सुनी। दादी जान रोते हुए कह रही थी, देखो ज़मान बेटा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर नाज़नीन अभी कम उम्र है और तुम्हारी अकलौती औलाद भी है। उसकी ये ख़ता माफ़ कर दो। बाबा जानी ने गुस्से से दरवाजे को एक लात रसीद की। एक धमाके से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गए। मैंने ज़ोर से आंखें मीच ली। मेरा दिल खौफ के मारे ज़ोर से धड़कने लगा। जो इंसान इतने सारे इंसानों को मौत के घाट उतार सकता है, वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा? बाबा जानी ने मुझे ज़ोर से झिंझोड़ा तो मैं सहम कर चीखने लगी। दादी जान ने ज़बरदस्ती मुझे उनसे दूर किया।
बाबा जानी हाँफते हुए एक सोफे पर बैठ गए और नफरत से मुझे देखते हुए कहने लगे, सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दिया तुमने। तुम जैसी नाफरमान औलाद होने से खुदा मुझे बेऔलादी रखता तो कितना अच्छा होता। मैं सिसकियाँ लेने लगी। दादी जान ने रोते हुए बाबा जानी के पाँव पर अपना दुपट्टा रख दिया। बाबा जानी साकित रह गए। दादी जान रोते हुए कह रही थी, ज़मान तुम्हें माँ के आंचल का वास्ता है, नाज़नीन की जान बख्श दो, एक माँ के दुपट्टे की लाज रख लो, इसे बख्श दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। दादी ने ये कहते हुए हाथ जोड़े। बाबा जानी बेबसी से दादी जान को देखने लगे। मैं बेड से उठकर बाबा जानी के कदमों में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दें बाबा जानी, मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। बाबा जानी ने दादी जान को उठाया और उनके सर पर दुपट्टा उड़ाया और मेरी तरफ देखे बिना कमरे से बाहर निकल गए। मैं अपना सर हाथों में पकड़कर बैठ गई। दादी जान उठकर मेरे पास आ गई थी। मैं दादी जान के गले लगकर बुरी तरह से रोने लगी। दादी जान ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, नाज़नीन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने शिकवा गुनाह नज़रों से उन्हें देखा और कहा, दादी जान मैं मानती हूँ कि मैंने अच्छा नहीं किया, मगर क्या ये इंसाफ है कि मेरी ये गलती की सज़ा पूरे घराने को दी जाती? रेशमा के घर वालों का क्या कसूर था? दादी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, यहाँ अक्सर बेगुनाहों की ही जान ली जाती है। ये कहते हुए दादी जान उठकर कमरे से बाहर चली गई। मैं रेशमा और आज़र को याद करके रोने लगी। तभी सर्द हवा का एक झोंका मुझे अपने गाल पर महसूस हुआ। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। बंद कमरे में, जिसकी सब खिड़कियां और दरवाजे भी बंद हो, हवा का झोंका कहाँ से आया? मैं उठकर खिड़की की तरफ बढ़ी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, आ जाओ। मुलाजमा अंदर आ गई और सर झुका कर कहने लगी, नाज़नीन बीबी, नवाब साहब ने कहा है कि आप अपना सामान पैक करें। मैं चौंक गई। मैंने मुलाजमा से पूछा, क्यों? मुलाजमा ने कहा, जी वो कह रहे हैं कि आपको दूसरी हवेली जाकर रहना होगा। मैंने मुलाजमा को जाने का कहा और कमरे में टहलने लगी। दूसरी हवेली? मगर क्यों? मैं ये सोचते हुए कमरे से बाहर चली आई। दादी जान मेरी तरफ आती दिखाई दी। मैंने दादी जान से कहा, दादी जान बाबा जानी मुझे दूसरी जागीर पर बनी हवेली में भेज रहे हैं। क्यों? दादी जान ने दुखी लहजे में जवाब देते हुए कहा, मेरे कहने पर तुम्हारे बाबा जान ने तुम्हारी जान बख्शी कर दी है। तुम्हारे बाबा जान ने तुम्हारे लिए ये सज़ा तजवीज़ की है। वो तुम्हें बतौर सज़ा किसी दूसरी जागीर पर मौजूद हवेली में भेज रहे हैं। अब वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। मैं शर्मिंदा सी खड़ी रह गई। मुलाजमा ने मेरा सामान पैक करवाने में मेरी मदद की और सामान उठाकर ले गई। मैं दादी जान के गले मिलकर रोती रही और फिर जाकर गाड़ी में बैठ गई। दादी जान ने मुझे रोते हुए रुखसत किया और गाड़ी दूसरी जागीर पर मौजूद हवेली की तरफ चल पड़ी। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ती रही। मैं गुमसुम सी बैठी थी। मैंने रेशमा से वादा किया था कि उसे कुछ नहीं होने दूंगी, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मेरे कदम लड़खड़ाए ज़रूर थे, मगर उसकी सज़ा मुझे नहीं, आज़र, रेशमा और उसके माँ बाप को दी गई। मैं बेआवाज़ रोने लगी। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। मैं तो उस वक्त चौंकी जब गाड़ी रुक गई। मेरे साथ एक मुलाजमा जन्नत को भेजा गया था, जो कि बाबा जानी की मुँह चढ़ी मुलाजमा थी और मामूली बात की भी खबर उन्हें दिया करती थी। गाड़ी रुकी तो उसने मुझे झिंझोड़ते हुए कहा, बीबी जी उतर आए, घर आ गया है। मैंने चौंक कर उसे देखा। उसके चेहरे पर तंज था। मैंने नफरत भरी नज़रों से उसे देखते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उतर आई। वो जन्नत थी जिसने मुखबिरी की थी और बाबा जानी रेशमा के घर पहुंच गए थे। अब शायद यहाँ पर उसे मुझ पर निगरान बनाकर भेजा गया था। मैं आगे बढ़ी तो एक मुलाजमा जल्दी से आगे बढ़ी और एक कमरे तक मेरी रहनुमाई करके वापस चली गई। मैं बिस्तर पर गिरकर सिसकियाँ भरने लगी। ज़ख्म कितना ही बड़ा हो, मगर वक्त सारे ज़ख्मों पर मरहम रख ही दिया करता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। 3-4 दिन बाद मैंने खुद को संभाल लिया और ख़ुद को मसरूफ़ करने के लिए किताबों में खो गई। अब मेरा अक्सर वक्त मुताला करते ही गुजरता था। उस दिन भी मैं स्टडी में बैठी एक किताब की वर्कगर्दानी कर रही थी कि दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक की आवाज़ आई। मैंने चौंक कर किताब से नज़रें उठाकर दरवाजे की सिमत देखा। उस वक्त मैं सिर्फ मुताला किया करती थी और इस बात से सभी आगाह थे, लिहाजा कोई भी उस वक्त मेरी मसरूफियत में दखल अंदाजी नहीं किया करता था। मुझे ये बेवक्त की दस्तक, मुझे अच्छी खासी कोफ्त हुई, ताहम मैंने नरम आवाज़ में कहा, आ जाइए। मैं किताब के दरमियान हाथ रखकर चंद लम्हे तक मुंतज़र निगाहों से दरवाजे को देखती रही।
मगर किसी ने भी मुझे अंदर झांक कर नहीं देखा। कोई मुलाजमा होगी शायद। मेरे देर से जवाब देने पर वापस चली गई। ये सोचकर मैं दोबारा किताब में गर्क हो गई। लम्हा बलम्हा आगे बढ़ती कहानी बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुंची तो दोबारा उसी दस्तक ने मुझे शदीद झंझलाहट में मुब्तला कर दिया। अरे भाई, कौन है? आ जाओ अंदर। चंद लम्हे तक खामोशी छाई रही, फिर दरवाज़ा खुल गया मगर कोई भी अंदर नहीं आया। मैंने ताज्जुब से उसे देखा। दरवाज़ा किसने खोला था? और अगर किसी ने नहीं आना था अंदर तो भला दस्तक देकर दरवाज़ा खोलने की क्या तुक थी? अजीब बेवकूफ़ मुलाजिम है यहाँ के, मैंने भिन्ना कर उठते हुए सोचा। शदीद गुस्से में मैंने बाहर निकलकर देखा तो राहदारी बिल्कुल खाली थी। अजीब बात थी, दस्तक को तो ये कहकर भी नज़रअंदाज किया जा सकता था कि शायद ये मेरे तख़य्युल का कोई करिश्मा हो, मगर दरवाज़ा खुलना, क्या वजह थी इसके पीछे? दरवाज़ा खुलने और मेरे उठने के दरमियान का वक्फा 1 मिनट से भी कुछ कम ही हुआ होगा। इतनी सी देर में उस तवील राहदारी को पार करके चला जाना भी तो मुमकिन नहीं था। खैर, मैंने इस बारे में सोचना छोड़ा और दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया और दोबारा अंदर की राह ले ली। कुर्सी पर बैठकर मैंने दोबारा किताब पढ़नी शुरू कर दी। चंद पल गुजरे होंगे कि इस बार ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। मैं उस धमाके से बुरी तरह से उछल पड़ी। आखिर ये कौन था जो ऐसी हरकतें कर रहा था? मुझे तो शदीद ताव आ गया। मैंने तेज़ी से उठकर बाहर झांका और बुलंद आवाज़ में पूछा, कौन है? कौन है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है? सामने आ जाओ वरना बहुत बुरा हश्र करूँगी मैं तुम्हारा। जवाब में मुझे अजीब सी हंसी की आवाज़ सुनाई देने लग गई, गोया कोई मुझे बेवकूफ़ बनाकर हंस रहा था। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। मैं हंसी की आवाज़ के मरकज़ को खोज रही थी और मुझे उस वक्त सख्त हैरत हुई थी जब मैंने सामने की दीवार में से ये आवाज़ सुनी। इसके साथ साथ ही उस दीवार पर एक परछाई सी नज़र आने लग गई थी। मैं तो फटी फटी आंखों से उस परछाई को देखने लगी थी। जैसे जैसे वो परछाई वाज़े हो रही थी, मेरी तो आंखें हैरत और खौफ से फैलती ही जा रही थी। और अब वो महज एक परछाई नहीं थी, बल्कि उस जगह पर एक जीता जागता इंसान खड़ा मुझे देख रहा था। वो एक खूबसूरत नौजवान था। उसके सुनहरी बाल और नीली आंखें बहुत ही दिलकश थी। मैंने खौफ सदा सी आवाज़ में उससे पूछा, कौन हो तुम? वो मेरी तरफ बड़ी मोहब्बत से देखकर मुस्कुराया। उसके जिस्म से बड़ी अजीब सी खुशबू फूट रही थी। ये खुशबू मुझे बड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा तो मैं डर कर पीछे हट गई। उसने मुझे डरते हुए देखकर कहा, डरो मत नाज़नीन, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैंने दहशतज़दा अंदाज में उसे देखते हुए कहा, तुम हो कौन और क्या चाहते हो मुझसे? मैं खौफ से लरजने लगी तो उसने तेज़ी से आगे बढ़कर मुझे अपने बाजू में लिया। मुझे ऐसे लगा कि उसका लम्स शायद कोई जाना पहचाना सा लग रहा था। उसकी खुशबू भी बार बार मेरे जहन के बंद दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अचानक मुझे याद आ गया कि ये खुशबू तो आज़िर से उठती हुई होती थी। मैं एक झटके से उससे अलग हुई और दम बखूद सी होकर उसे देखने लग गई। आज़िर? आज़िर? मेरे मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। वो चंद लम्हे तक तो मुझे चुपचाप खड़ा देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, नहीं, मैं आज़िर नहीं हूँ, मगर आज़िर में जो तुम देखती थी वो मैं ही था। मैंने बदहवास होकर पूछा, क्या मतलब? उसने कहा, आज़िर के जिस्म से जो खुशबू फूटती थी वो मेरी ही थी। और मेरी आंखों को गौर से देखो। तुम्हें लगता है कि ये आंखें आज़िर की हैं, मगर ये तुम्हारी गलत फहमी है। जब तुम आज़िर के साथ होती थी तो तब आज़िर का जिस्म उसका नहीं मेरा होता था। जो मैं चाहता था वो वही करता था। मेरा तो सर ही चकराने लगा। आखिर ये बंदा कैसी ना समझ में आने वाली बातें कर रहा था। मैंने अपना चकराता हुआ सर थाम कर नीचे बैठते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक इंसान का जिस्म उसके अलावा किसी और के कब्जे में कैसे जा सकता है भला? उसने कहा ऐसे। मैं उसकी तरफ देख रही थी। उस वक्त मैं अंगश्ते बदनार रह गई थी।
जब मैंने उसे अपने रूप में बदलते हुए देखा था, वो आज़र के रूप में आ चुका था। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बस साकित से उसे देखती रह गई। वो मेरे करीब बैठते हुए बोला, वक्त आ गया है नाज़नीन कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूं। मैं दर हकीकत एक जिनज़ादा हूँ और मेरा नाम साइक है। मैंने पहली बार तुम्हें तब देखा था जब तुम बरगद के दरख्तों के पास पत्थर पर बैठी थी। मैं बहुत आवारागर्दी कर चुका हूँ, एक से एक हसीन लड़कियाँ देखी है मैंने, मगर मैंने जब तुम्हें देखा तो मैं तुम पर सो जान से फिदा हो गया। मुझे लगा मेरी तलाश ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैं किसी ऐसे रूप में तुम्हारे सामने आना चाहता था कि तुम में बिला वजह का डर भी पैदा ना हो और तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लग जाओ। और ऐसा रूप मुझे सिवाय आज़र के कहीं नहीं मिला। रेशमा के बारे में पता चलने के बाद उसके बाकी ख़ानदान वालों के बारे में जानना मेरे लिए ज़रा मुश्किल नहीं था। इसलिए मैंने आज़र के बारे में जानकर रेशमा के घर में तुमसे मिलने का फ़ैसला कर लिया था। और ये तो मेरी बहुत खुशकिस्मती थी कि तुम भी मेरी तरफ माइल होती चली गई थी। लेकिन फिर उस मुलाजमा ने तुम्हें रेशमा के लिबास में हवेली से निकलते हुए देखकर तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया था, और फिर उसी मुलाजमा ने जाकर तुम्हारे बाप को सब कुछ बता दिया, और तुम्हारा बाप तो वो गुस्से में आकर रेशमा के घर पर ही चढ़ दौड़ा। मेरी आंखों से अब आंसू बहने लग गए थे। मैंने उससे कहा, अगर तुम जिनजादे ही थे तो तुमने उन्हें बचाया क्यों नहीं? क्यों तुमने उन्हें मरने दे दिया? वो ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई बुजुर्ग किसी बच्चे की अहमकाना बात पर मुस्कुराता हो। उसने कहा, किसने कहा कि वो मर गए हैं? वो सारे के सारे जिंदा हैं अभी। ये सुनते ही मैं बुरी तरह से उछल पड़ी। मेरे लिए तो ये खबर किसी बम से कम बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने बेयकीनी से उससे पूछा, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? ऐसा कैसे हो सकता है भला? बाबा जानी ने तो खुद मेरी आंखों के सामने ही आज़र को गोली मार दी थी। वो हंस पड़ा और फिर वो मुझसे कहने लगा कि यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आज़र दरअसल कभी शहर से आया ही नहीं था। वो तो मैं था जो कि आज़र के रूप में रेशमा के घर में आकर रह रहा था। जब तुम्हारे बाप ने अपने तहीं मुझे मार दिया तो मैंने उसको और वहाँ मौजूद हर शख्स को धोखे में मुब्तला कर दिया था। तुम्हारे बाप का ख्याल था कि उसने उसके सारे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया है अपनी तरफ से, मगर वह अभी भी गलत था। उसने और उसके लोगों ने वही देखा जो मैं उनको दिखा रहा था। रेशमा और उसके माँ बाप, उसके घर वाले सारे के सारे जिंदा हैं अभी, और मैंने ही उन्हें एक महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। ये सब कुछ सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू लरसने लग गए थे। रेशमा जिंदा थी, इससे बढ़कर तो मेरे लिए खुशी की कोई खबर और हो ही नहीं सकती थी। मैंने फिर हिचकिचाते हुए उसको देखा और उससे पूछने लगी, अब तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी मोहब्बत का जवाब अपनी मोहब्बत से दोगी? मैंने उसके आगे की तरफ बढ़े हुए हाथ पर अपनी एक नज़र डाली और फिर अपना हाथ उसके हाथ में थमा दिया था। मेरी और साइक की शादी को अब कई बरस बीत गए हैं। बाबा जानी ने खुद ये शादी करवाई थी और साइक ने उन्हें कैसे इस शादी पर आमादा किया था, ये तो मैं आज तक नहीं जानती। अलबत्ता मैं इतना जानती हूँ कि मैं उसके साथ अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आज भी कभी कभी हम लोग रेशमा से मिलने के लिए भी चले जाते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।